Hello student, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LG Institute of Engineering and Technology. Today I will discuss centralized computer control system and distributed control. In last lecture, we have discussed question explain early computer control system. This system divided in three parts: direct digital control, centralized computer system, and distributed control. In last lecture, I have discussed distributed control system. Today I will discuss centralized computer system and distributed control. If this question asked in 5 marks, then you have to discuss direct digital control, centralized computer system, and distributed control. For direct digital control, you have to see my last lecture. Okay, so today let's see centralized computer system. In last lecture, I have discussed some topics. Okay, right? I have discussed this block diagram. Also, I have discussed internal block diagram of direct digital control, and also I have discussed secondary direct digital, right? Some disadvantages of direct digital control. The computer, let's discuss some disadvantage of direct digital control. The computers were all drum machines, that is the memory was located on a magnetic drum. मीन्स पहले जो कंप्यूटर्स आते थे वो बहुत ही बड़े थे, ठीक है. सो डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल में क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े लगते थे और उसकी जो मेमोरी है वो मैग्नेटिक ड्रम में थी, राइट. सो यहाँ पे सिस्टम बहुत स्लो थी, तो हर एक मशीन को ऑपरेट करने में टाइम लगता था, राइट. 4 मिली सेकेंड का डिले आता था, तो वो सब डिसएडवांटेज था किसका, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल का. सेकेंड पॉइंट, द मेमोरीज वेर वेरी स्मॉल. मतलब जो हम जो सिस्टम यूज करते थे, जो कंप्यूटर यूज करते थे, उसकी मेमोरी बहुत कम थी, राइट. और यहाँ पे लिखा है कि हम 4000 टू 8000 वर्ड्स हम लिख सकते थे, राइट. और 12 to 16 बिट थी हर एक के लिए मेमोरी, तो वो बहुत कम पड़ती थी. ऑल प्रोग्रामिंग हैड टू बी डन इन मशीन लैंग्वेज, राइट. मतलब जो भी प्रोग्रामिंग करते थे वो मशीन लैंग्वेज में थे, और पहले सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते थे तो उनको टफ रहता था, ठीक है. क्योंकि इन फोर्थ पॉइंट, नाइदर वेंडर्स और यूजर्स हैड एनी एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. मतलब जो वेंडर और यूजर्स थे उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब उसको टफ पड़ती थी. तो ये सब एडवांटेजेस है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के. नेक्स्ट, नाउ सेकंड, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम. To help justify the cost, vendors, supporter add all types of computer function, including both supervisory control and direct digital control, in one computer box or mainframe at a central room location as shown in figure 1. Means uh, पहले हमने डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखा, उसके डिसएडवांटेजेस भी देखे. अब हम वो डिसएडवांटेज को रिड्यूस करते एक नए सिस्टम बनाते हैं. मतलब कंप्यूटर बहुत बड़े लगते थे,
तो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ एक ही ऑपरेटर रखा, मतलब सेंटर में जो भी पूरी सिस्टम चल रही है वो हम सेंटर से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो उसका डायग्राम भी हमें बताया है। तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम कि एक प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसका जो इनपुट है वो डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल लेवल में जाएगा, मतलब सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल तो यूज किया है, सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल भी है, बट यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, सो see here, I have mentioned with dotted line, right? So this dotted line, this box known as centralized computer system, and you can see uh, input of process is going to direct digital control level, and from direct digital level control level goes to signal in operator's console, and another signal goes to supervisory control level. Supervisory control level signal goes to supervisor's console, and supervisor's console check all data and then give feedback, right? So this system is closed loop system, right? So if supervisor change something, so he or she can give feedback to supervisory control level, and supervisory control level give feedback to direct digital control, and direct digital control give feedback to process. And in level 1, operators console, right, give feedback to direct digital control, and direct digital control give feedback to process. Okay, so in this system you can see one computer which have located in center. You can see in this diagram one process is shown, right? And you can see operator is on center of plant. Means in this system you can see that जो वायर्स है, आप देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, राइट? सब कुछ एक ही हम सेंटर में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है दिखने में, और आप देख सकते हो कि पूरा जो प्लांट है उसका यहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में। यू हैव टू ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम फॉर एक्सप्लेन centralized control system. So while these computers used in centralized computer system, while read first, while these computers used in centralized control system had much greater speed and memory size compared to earlier system. मतलब कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल में हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया, तो मॉडिफाइड करने के बाद जो स्पीड थी वो हमने इंक्रीज की, जो डिले आ रहा था, मैंने डिसएडवांटेज बोले थे डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल के, तो वो सब हमने रिड्यूस किया, और मेमोरी साइज भी थोड़ी हमने बढ़ाई। किसमें? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के। तो पहला डिसएडवांटेज ये था कि अभी भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतना नॉलेज नहीं था, जो भी वेंडर या जो सपोर्टर था उसको. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट high level languages were developed. Thus, there were delay in installment and running. मतलब हाई लैंग्वेज उन लोगों ने डेवलप की थी, तो इंस्टॉलमेंट एंड डेवलपमेंट में थोड़ा डिले हो रहा था, राइट. मतलब देर लग रही थी. सेकेंड डिसएडवांटेज, सेंट्रल में हमने एक कंप्यूटर लगाया था, ठीक है. तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम होती थी कि कम्युनिकेशन के लिए हमने सेंट्रल में कंप्यूटर लगा दिया, जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं पूरी प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, राइट. तो देखते हैं, द वास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम required to bring the signals to the centralized computer location and return control to the signals to the field was expensive. मतलब कि जो ऑपरेटर है उसको कोई मैसेज देना है, तो मैसेज वो कैसे देगा. कोई अलग लेवल्स नहीं थे, एक ही ऑपरेटर सेंटर में रखा था, तो वो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा था सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में. और हम कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए रखे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता था. ओके. सो उसके कारण जो नॉइज है वो नॉइज भी इंक्रीज हो रहे थे सिस्टम में. ओके. थर्ड, because of because of the control functions were located in one computer, the possibility that the computer might fail resulted in demand for a computer along backup system. मतलब कि अगर हमने सेंट्रलाइज्ड पूरा ऑपरेटर सिस्टम रखा है तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुआ, राइट. तो क्या होगा, पूरी सिस्टम फेल हो जाएगी. तो जब ये उसके डिसएडवांटेज है, तो जब नई सिस्टम हम डेवलप करेंगे तो हम एक चीज याद रखेंगे कि बैकअप हम रखेंगे. ओके. कि बैकअप सिस्टम भी होनी चाहिए. तो यहाँ पे बैकअप नहीं था, तो जब मैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डेवलप करूंगी, देखो हमने वन बाय वन अर्ली कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा. पहले अर्ली कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम थी, फिर सेकेंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम आई. सेकेंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में थोड़े डिसएडवांटेज थे, तो थर्ड आई डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में हमने मॉडिफाइड किया कि एनालॉग बैकअप सिस्टम हमने ऐड कर दी. ठीक है. तो ये मैंने बात की सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम की. अब हम थर्ड वन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल. डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम 1970 में आया है, राइट. तो यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज ऑफ the problems experienced with the centralized computer system of the late 1916s. मतलब कि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में 1960 में थोड़े प्रॉब्लम आए, तो अब नया डेवलप किया, नया सिस्टम डेवलप किया 1970 में.
right? So most of the new computer projects of the early 1970s were relatively small, right? मतलब 1970 में हमने नए कंप्यूटर के प्रोजेक्ट ऐड किए जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम लगाई. The distributed computer system have small set of boxes containing one or more microprocessors. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में हमने छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, राइट. और वो जो सिस्टम थी वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम थी. ईच ऑफ द बॉक्सेस कंट्रोल्ड वन और अ फ्यू लूप्स. मतलब कि एक बॉक्स एक एक बॉक्स जो था, राइट, वो थोड़ी थोड़ी जो कंट्रोल की जो लूप थी वो कंट्रोल करती थी, राइट. रीड अगेन. ईच ऑफ द बॉक्सेस कंट्रोल वन और अ वेरी फ्यू लूप्स. ऑल ऑफ देम. अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे आई वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम were connected by a single high-speed data link that permitted communication between each of each of the microprocessor-based boxes and with a centralized operator station or console. मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए किसके बीच? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कम्युनिकेशन एंड जो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटर स्टेशन है उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए हम हाई स्पीड डेटा लिंक यूज करते थे, राइट. अभी भी वो हम यूज कर ही रहे हैं जहाँ पे DCS यूज कर रहे हैं, ठीक है. फिर दिस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि दिस सिस्टम्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलायबिलिटी इन टू वेज. मतलब दो तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. पहला, these units control only a few process loops. मतलब कि हमने जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं तो हर एक बॉक्स एक या दो ऐसी लूप वो कंट्रोल करते हैं जो भी हमने बॉक्स में डिवाइड किया है पूरी सिस्टम को. तो उसके कारण क्या होगा कि भाई कोई एक बॉक्स में प्रॉब्लम आएगा, मतलब एक सिस्टम में, तो बाकी की जो सिस्टम है वो रनिंग में रहेगी, राइट. तो दिस इज एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल. सेकेंड, कि डिजिटल बैकअप कैपेबिलिटी वाज डेवलप्ड. हमने बैकअप करने के लिए भी यहाँ पे सिस्टम डेवलप करती है. तो कोई इमरजेंसी फेलियर हो, राइट, तो हम इजीली, हमारे पास बैकअप तो है तो हम देख सकते हैं कि कब वो सिस्टम फेलियर हुई, क्यों फेलियर हुई, राइट. दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल. You can see in this block diagram we have added one block and that is analog backup device. मैंने आपको पहले ही बोला था जब सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया था, लास्ट डिसएडवांटेज, उसमें मैंने बोला था कि जो नई सिस्टम आएगी तो सेंट्रलाइज्ड के बाद जो नई सिस्टम आई वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी. So in distributed control system, we have added analog backup device, right? So one block I have added
right? So process signal goes to analog backup device. From analog backup device, two signal goes to direct digital control level and another signal goes to operator's display. Then direct digital control signal goes to supervisory control level and supervisory control level signal goes to supervisor's console. If supervisor want to change some data, then supervisor gives feedback to system. So supervisors give feedback to supervisory control level and supervisory control level goes to uh, in direct digital control for backup and another goes to process, right? Another signal goes to in process. And here from direct digital control signal goes to operator's console and operator's signal goes to in analog backup device and another signal goes to direct digital control and from direct digital control uh, signal goes to in process and here and another signal goes to analog backup device. You can see in this block diagram every time each signal goes to in analog backup device, right? In modern here you can also use digital backup device, right? For analog system we will use analog controller and analog backup. For digital we will use digital backup device, right? You can see one diagram shown here. In this system we have a divided in small boxes, whole system divided in small boxes and you can see more than one controller used in a distributed control system. This is central control room and operator can operate all process supervisory. This is supervisory level and supervisory level operate all operations. For communication of whole system, here we have a connected data highway, right? Data highway that is used for communication of all systems, right? In chapter 5 we will study about different networks which is connected in distributed control system. ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है. डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. नेक्स्ट, सी एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. मॉड्यूलर सिस्टम डेवलपमेंट कैपेबिलिटी दैट इज इजी टू यूज. मीन्स यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम डेवलप करने के लिए, राइट, ये जो सिस्टम थी ना वो पूरी इजी थी यूज करने के लिए. ओके. सेकेंड, अ कलर CRT बेस्ड largely programmed operator interface system that is easy to adapt to individual plant situation. मतलब फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? फर्स्ट एडवांटेज ये हुआ कि ये जो सिस्टम थी ना वो इजी टू यूज करने के लिए बहुत इजी थी. एंड सेकंड क्या था कि प्रोग्राम करने के लिए जो ऑपरेटर जो सिस्टम यूज करते थे वो पूरी कलर CRT बेस्ड थी, right? And operator interface system
that is easy to adapt to individual plant situation. मतलब जो प्लांट में जो इंडिविजुअल हमने जो कंट्रोलर लगाए हैं, राइट, तो वो सब हम इजीली वो डिस्प्ले थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेजेस, ये जो सिस्टम थी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल वो प्री प्रोग्राम्ड थी, राइट. सो लेट्स डिस्कस. A pre-programmed menu type of instruction system for the microcontroller of the controller box. This permits the final programming of the total system to be done by pushing a few buttons on the keyboard. मतलब कि ये जो प्री प्रोग्राम्ड जो सिस्टम थी उसमें इंस्ट्रक्शन के मेनू थे, राइट, और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम थी, तो पुश बटन थ्रू हम इंस्ट्रक्शन ऑपरेट कर सकते थे. उसमें कुछ ऐड या कुछ निकालना हो तो इजीली हम कर सकते थे. पहले डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल में एंड सेंट्रलाइज्ड में क्या था कि खुद से प्रोग्रामिंग करना पड़ता था, तो वो बहुत टफ पड़ता था क्योंकि प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं था. तो उसके कंपेयर में ये तो बहुत इजी है, राइट. फिर नेक्स्ट, इजी टू ऑपरेट प्री प्रोग्राम्ड मेनू, राइट. नेक्स्ट एडवांटेजेस, डेटा हाईवे, data transmission and communication capabilities between separate units of the system. मीन्स कि हम यहाँ पे डेटा हाईवे, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो डेटा हाईवे जो यूज करते हैं वो डेटा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं. जो भी सेपरेट सिस्टम है तो उसको कम्युनिकेशन तो करना ही चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स लगाए थे, राइट. प्रोफिबस, फील्ड बस. नेक्स्ट, इजी कम्युनिकेशन विथ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल और अदर हायर लेवल प्रोसेस कंट्रोल. मतलब बहुत इजी कम्युनिकेशन होता था ये सिस्टम से. सुपरवाइजर कंट्रोल लेवल और दूसरे भी कोई हाई लेवल कंट्रोल लेवल है तो भी हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफी बस, फील्ड बस, डिफरेंट बस भी यूज की थी. ठीक है, ओके. ये जो थ्योरी है वो आपको नोटबुक में लिखनी है, राइट. यहाँ पे एक थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है. देखो ये चैप्टर में अभी 2 क्वेश्चन बाकी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हम जो डिफरेंट डीसीएस में जो डिफरेंट हायरार्की लेवल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हर एक लेवल का क्या काम है. तो एक क्वेश्चन ये हुआ और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्मॉल लेवल एंड हायर लेवल का क्या वर्क है, राइट. तो इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगी ये दोनों क्वेश्चन. अभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप पूरा लिख दो, ठीक है. ओके, थैंक यू.